Honorable Principal Ma'am, Chairman Sir, and my fellow colleagues and lovely students, I welcome you all. Today is very extraordinary moment for our institute that our ex-student of this campus is with us, and she is not only a brilliant student but also recently have collaboration with an NGO, Manav Seva Trust, Rajasthan. Before I introduce this girl to you, I want to share my thoughts. With a fabulous like student, and it is काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू माहिका बेनीवाल, द स्टूडेंट ऑफ MSIS in session 2024-25. This student has secured All India rank 700 in CLAT examination. Students, I again repeat my words. This student secured 700 rank AIR, and in OBC category she was ranked 50. That's a fabulous achievement of this girl. And Mahika, I personally congratulate you, beta, because you were a student of mine, and it's really privilege for me that girls like her is a student of this campus, beta. MSIS has a privilege to motivate such students and give them platform to shine all over India. I congratulate you, beta. Currently, she is studying in National Law School of India, University, Bangalore. This is a most prominent institute of India. Students, I want to know, are you really aware of CLAT examination, beta? Because in our rural area, our perception is that generally we prefer to go towards engineering, doctorate, like these fields are quite demanding in our local areas, beta. But CLAT is a really, I must say, is not much famous among our rural area, beta. So first of all, I want to tell you that CLAT is a most prestigious and most difficult exam of India, beta. So again, I request you to give her a big hand, beta. CLAT जो होता है, ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो लॉ का जो फील्ड है, जैसे देश में आपने नाम सुने होंगे कपिल सिब्बल, ओके, जो बहुत ही राम जेठमलानी, जो इस तरीके के वकील हैं जिनके एक एक केस की हियरिंग की फीस करोड़ों में होती है स्टूडेंट्स. सो दिस गर्ल हैज प्रिविलेज, एंड आई रिक्वेस्ट टू आवर डायरेक्टर सर टू फेलिसिटेट हर. ओके सर. सो आई विल रिक्वेस्ट महिका to come on the stage and enlighten the students about her own journey and the experience of MSIS also. I request her to suggest the role and importance of MSIS and the afterward journey also. So, Director sir will felicitate Mahika. Applause student. It's a really
extraordinary achievements for the school institutes beta. बहुत से बच्चों को इस बच्ची से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Her expression, her fluency of speaking is quite extraordinary. Her father is a government teacher, lecturer of chemistry subject, Mr. Virender Beniwal. So, yes, Principal Virender Beniwal. Okay, Mahika, better come on the stage and share your opinions and experience. उधर कर दो सर. Good afternoon, students. And before I begin, I would like to thank MSIS for providing me such a platform to be able to interact with you guys and be able to present my opinions. And regarding my college, right now I'm studying, as I mentioned, at National Law School of India University, Bangalore, also called NLSIU. And to get there, I gave the CLAT exam and did my 12th education with here at Mata Shravani School. And the staff has been really helpful. And I came here, the staff and teachers would be so motivating, and it really helped me to be able to work harder, and they really encouraged me to work harder. And I gave the CLAT exam, which you can give with any stream. You can do commerce, science, whatever subject you are interested in, and you just go from there. You give CLAT, and like any other exam, you get your ranking, you pick your college, and according to your rank, you're allotted the college. If you would guys like to know more about CLAT, I can share that. Are you guys interested in knowing more about CLAT? If you are, raise your hand. Okay, so CLAT is basically a reading comprehension exam. Or you are given a passage, you just read that, and based on that you answer the questions that follow. It has 5 sections: legal reasoning, reading comprehension, logical reasoning, GK, and quantitative techniques, which is just mathematics with a fancy name. You can do coaching with, I personally was doing coaching with Legal Edge. You can pick any coaching you like, or you can do a self-preparation, online mode, whatever you prefer. And it is a great option since there is a lot of crowd with IIT, JEE, NEET, and other such stuff. So it's a unique option, and right now it's still not overcrowded. And luckily the seating is quite high for the university that I'm studying in. It's 310, so it's quite good for you guys. You guys should give it a try if you wish. So initially, the question I'm answering right now is what are the initial difficulties with CLAT. So initially, the biggest difficulty is your reading speed. When I first gave the first mock that I gave for CLAT, it is quite lengthy. There's like 500 to 400 word passages, and there's like 30 of them. So it's quite a huge task to read the question paper. The first time I was just able to do like 30% of the paper. I was not even able to get through the entire paper from front to back. So the biggest challenge is your reading speed and also comprehension. Sometimes the passages have really complex English. So the comprehension is a big key part of giving CLAT. You need to do a lot of reading. I read many classical English novels, literature that really helped me with my comprehension. So that is one of the biggest challenges you face while doing CLAT. And another challenge is the paper. The answers are quite subjective. The questions, I might feel that it is the right answer, but the examiner might feel differently. So another challenge that is huge is to get into the mindset of the examiner and to be able to understand why this would be the right answer from their perspective. Also, the pressure is like everywhere because it's not just calculation, you need to actively think about it, apply logical reasoning and come to a conclusion regarding this topic. So that is also a huge challenge. Any questions which you guys would like to ask regarding CLAT or law?
Also, if you guys would like, I can answer the questions in Hindi or a mix of Hindi and English if that is an issue at all. Was the test was in online and offline mode? The test is in offline mode. So you have prepared it by reading the passages or the questions that you have prepared. That was from offline mode by reading it. Yeah, so basically my reading comprehension, I worked on it through 3 mediums. Number 1 was reading novels. I'm a huge reader, I like reading, I've liked it ever since I can remember. So I would read whatever I was interested in, the novels I was interested in, that was one of the mediums. Then also you go through articles, since the articles that are in the actual passage range from science, history, so I needed to do the basic knowledge about all of them. So I would read the articles, some basic research, I would read a little bit about econ, a little bit about science, history, so basic research about them, and read articles. And the last and final one was reading English newspaper. I personally used the Hindu, which is more suggested since that it is a little bit more complex and covers actual GK as compared to Times of India. So I read newspapers, and the mocks were just a test, not for practice for my reading. So the comprehension you have read, where the English was moderate or high level or low level? It depends. I read all of them. The comprehension. In the exam. In the exam, it was actually quite disappointingly quite low level. But it varies from year to year. The year that I gave, it was moderate. Some years it was low, and I hear this year it was quite high. So the student has to work on their word power also. Yeah, you need to work on that too. Thank you so much. You're welcome. Any of the students would like to ask any questions? Is there any question which we do not require to read the passage to answer? No, there are no such questions. Even the mathematical questions, you do need to read the passage. Thank you. You're welcome. Before I move on, anybody else has any other questions? Yeah, you can ask in Hindi. I am fluent in Hindi also. Hindi भी बोल सकती हूँ मैं, तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं. Students, you should ask her which school subject we must focus primarily to achieve such success. आप ये पूछो ना कि कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए रेलिवेंट हैं, जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो तो आप जिस एज ग्रुप में हो, आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है. आई वांट टू नो कि आपने ये डिसाइड कैसे किया कि मुझे क्लैट ही देना है, मतलब इतना फर्मली डिसीजन कैसे लिया आपने? Okay, so thank you for your question. मैंने ये decision multiple parts थे. Number 1, I hated mathematics और मैं पहले impression में थी कि इसमें maths नहीं है, sadly है. And secondly, I've always been passionate about law and reading. So both of these are a huge part of CLAT and the career that I will eventually be pursuing, law. So mainly I had passion for law, which is why I was able to formally take up the decision कि मुझे CLAT ही करना है. And to answer sir's question to your delight, the subject you need to most focus on in your schooling is English, because that is a huge part of CLAT. Do you understand why I am asking this question? Thank you. You're welcome. I have a question that CAT exam can be given by online? Fortunately not, you can prepare for it online, but you cannot give it online. Thank you. You're welcome. Anyone else? Okay, so how many of you would vote that I move on? Raise your hands. जैसे हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना. क्वेश्चंस हैं वो पूछो, अगर मूव ऑन करना है तो उसके लिए वोट करो. हाँ, एक तो पिक करो यार.
हाँ या ना? ओके, जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप सभी को और क्लैट में क्वेश्चंस हैं, आप वो पूछ सकते हैं। आप सभी को अगर क्लैट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप वो पूछ सकते हैं। और अगर नहीं है तो I will move on to the segments that I prepared, mainly about online safety. तो should I move on आगे सेगमेंट पे? हाँ तो हैंड रेज करो। Looks like आप काफी बोर हो चुके हैं। Let's move on. Okay, so while they are getting the table, I'll begin. I'll be covering 3 sections mainly. Okay, so I'll be covering 3 segments. Number 1 being online predators, second being gender equality, and the third being child rights and responsibilities. And there is a microphone with the teacher, so I'll be asking questions with you guys in between. You can take the microphone and answer them. So the first one being the section that I'm moving on to is online predators. So before I begin, how many of you are active on social media, namely WhatsApp, Instagram? Raise your hands. And those who have your hands down, I can pull out my phone and find your IDs right now. Okay, so I'll just pull up my Instagram. Anyways, how many of you want me to take the session in English? Raise your hands. How many in Hindi? कितने लोग चाहते हैं मैं सेशन हिंदी में ले आऊं? ओके, और कितने लोग चाहते हैं मैं दोनों के मिक्स में ले आऊं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स? Yeah, as I said, bilingually. Majority seems to be in English. Just to confirm, पूरा English में लेना है? Okay, I'll move on with that. Seems like आप नहीं चाहते हैं. Anyway, so who might be? Okay, so you guys are all using social media, I'm assuming. So how many of you are like talking to people on social media who might not be just from your school? Raise your hands. Nobody? Damn, you guys are very well versed with social media security. Okay, but I'm sure many of you might still be talking, and you might get an opportunity where on social media you might come across a person who you might not know. You might be knowing for the first time via social media. So that person might be a predator, and so before I tell you how to identify them, we should know who might be a predator. So who is a predator? A predator is someone who claims to be your age. They might pretend that they are your age. They might claim to understand you deeply, and they might push conversations from private to like a more private medium. Might be maybe you're talking on Instagram, then you're like, hey, let's now move on to WhatsApp. There's more personal details there. They might be like, okay, let's move on to a more secret platform, which might be Snapchat or something like that. Also, to the guy clicking pictures. तो मैं मिक्स करने वाली हूँ हिंदी और इंग्लिश। आप एक्सक्यूज मी, लोकेश नाम है शायद आपका, आप मेरे फ़ोन से फोटोज अभी काफ़ी हो चुके हैं, यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस वन, ठीक है? तो प्रेडेटर कौन हो सकता है? ऐसा कोई भी इंसान जो कि ऐसा ढोंग करे, ऐसा प्रिटेंड करे कि वो आपकी उम्र के हैं, दे कैन प्रिटेंड दैट दे आर योर एज। वो ऐसे क्लेम्स कर सकते हैं कि वो आपको बेहद अच्छे से समझते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ लड़कियों की फोकस करने की बात नहीं है, लड़कों की भी फोकस करने की बहुत ज़रूरी बात है। तो वो ऐसे लोग प्रिटेंड कर सकते हैं कि वो आपकी उम्र के हैं,
वो कॉन्वर्सेशन जो है वो आपको और प्राइवेट माध्यम पे लेने के लिए फोर्स कर सकते हैं दैट यू शुड लाइक वांट टू प्राइवेट मीडिया, मे बी फ्रॉम इंस्टाग्राम से कहीं व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, मे बी स्नैपचैट बिकॉज दैट्स मोर सीक्रेट, द चैट्स आर डिलीटेड विद इन 24 आवर्स, सो अ मोर सीक्रेट मीडियम दे माइट आस्क यू कि आप कोई फोटोज भेज दीजिए, अपने कोई वीडियोस भेज दीजिए, वो आपको कॉल्स पर बात करने के लिए प्रेशर कर सकते हैं और वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग सकते हैं और वो आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली से आइसोलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। मे बी आपका फ्रेंड्स से कोई झगड़ा होता है, दे माइट बी लाइक हे योर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल नहीं समझते हैं, एक होता इंसान जो कि आपको समझता है वो मैं ही हूँ, ऐसा आपको एहसास दिला सकते हैं। वो शुरुआत में ऐसे एक्शंस कर सकते हैं जो कि आपको प्लीज करें, आपको पसंद आए। शुरुआत में वो इसी प्रकार के एक्शंस करेंगे और बाद में वो आपको डरा हुआ, गिल्टी, प्रेशर में और स्पेशल महसूस करा सकते हैं। इसको आप और अच्छे समझ सकें इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाली हूँ। इमेजिन कीजिए आपके पास इंस्टा में रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट में एक पर्सन, आप लड़का को भी इमेजिन कर सकते हैं, लेट्स से लड़का है तो उसका नाम प्रतीक है, लड़की है तो उसका नाम प्रिया है। तो इमेजिन कीजिए प्रतीक या प्रिया की आपको रिक्वेस्ट आती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उनसे बात करते हैं एंड प्रतीक या प्रिया बोलते हैं ओ आप माता साइड में पढ़ते हैं, मैं पास की कोई भी स्कूल समझ सकते हैं उसमें पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और अच्छा आप 11th क्लास में, मी टू, मैं भी 11th क्लास में ही हूँ। आप उनसे बात करते हैं, वो शुरुआत में आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं कि आप दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, आपसे बात करके पता चलता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, वो इस प्रकार की बातें आपसे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप उनसे बात करते हैं कुछ टाइम बाद, मान लीजिए अभी मार्च में आपका बर्थडे आता है, अपन इमेजिन करते हैं, और फिर वो आपके बर्थडे में आपको एक काफ़ी मस्त महंगी वाली वॉच गिफ्ट कर देते हैं और आप खुश होकर वॉच ले लेते हैं बिकॉज इट्स योर बर्थडे एंड दे आर योर फ्रेंड। फिर धीरे धीरे बात करते टाइम आपको पता चलता है, कुछ टाइम बाद आपसे और बातें करते हैं वो, फिर धीरे धीरे अराउंड अप्रैल आपका नया सेशन लगेगा, आई एम अज्यूमिंग, और अप्रैल के टाइम पे आपको मैसेज करते हैं कि यार मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं? कितने लोग उस फेवर के लिए बोलेंगे कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स कर देंगे, हाथ ऊपर करें। अगर आपको मैंने भी जो एग्जांपल दिए समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा सकती हूँ, समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर करें। ओके, आई एम अज्यूमिंग समझ में आ चुका है। कितने लोग उनको हाँ बोल देंगे ठीक है आपकी हेल्प करनी है हम कर देंगे, वो हाथ ऊपर करें। कितने लोग बोले कि नहीं हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, वो हाथ ऊपर करें। ओके स्मार्ट किड्स, वेरी गुड, दैट वुड हैव बीन द राइट आंसर। मैं दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूंगी। अगर आप हाँ बोलते हैं तो दे लाइक ओके सो आई हैव दिस बैग, वो स्कूल के बाहर आके आपका कोई फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड है वो आपको दे देगा एंड फिर मैं आप स्कूल में अपने बैग में रखना, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके पास में वो बैग है एंड देन वी जस्ट मूव ऑन। मैं आपके घर के पास में आके शाम को मैं आपसे वो बैग ले लूँगा। अगर आप हाँ बोलते हैं, आपके वो टीचर देखते हैं कि यार वो बच्चा जो थोड़ा टाइम से बाहर खड़ा है हमारे स्कूल के दरवाजे के आगे, दे आर नॉट अ स्टूडेंट, तो देखते हैं अच्छा ये किससे बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं। फिर वो बाद में स्कूल टाइम में आके आपसे पूछते हैं कि वो अनजान इंसान कौन था जो आपसे इतने टाइम से खड़ा था स्कूल के पास में, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था। आप बोलोगे मे बी दैट्स माई फ्रेंड प्रतीक या प्रिया। दे गेट अ लिटिल सस्पिशियस and imagine they happen to check your bag and they open the bag. There can be anything in the bag. We don't know much about Prateek or Priya other than the fact that they gave you आपको बहुत महंगा गिफ्ट दिया है and it can be anything, drugs, anything, literally illegal कुछ भी हो सकता है। और अगर आप नहीं बोलते हैं जो कि आप सभी ने चूज करा है, तो फिर वो इमेजिन कीजिए वो आपको बोलते हैं कि यार मैंने आपके लिए इतना कुछ करा है, मैं आपको इतना महंगा गिफ्ट दिया, आपको गिफ्ट लेने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मेरा गिफ्ट तो बड़ी जल्दी ले लिया, बाय अब आपको मेरा एक छोटा सा फेवर करने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है, आपको बस अपने बैग में रखना है तो है, कुछ नहीं करना, मैं आपके घर के पास आके आपसे ले लूँगा या ले लूँगी, आप मेरे लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते। उसमें आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई भी इंसान एक हैंड रेज करके बता सकते हैं। और अगर आप नहीं बताएंगे मैं रैंडमली पिक करूँगी, कोल्ड कॉल करूँगी कि आप बताओ। Take one for the team, guys.
Can you pass the mic? हाँ कि आपने अच्छा गिफ्ट दिया है, लेकिन उस बैग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप हमें उसकी इंफॉर्मेशन बताओ या उसके बारे में बताओ कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं या हो सकती हैं। Okay, very good. That's very smart of you. Clap. Okay, अब ट्राई करना नेक्स्ट जो आंसर कर चुके हैं उनके अलावा कोई करें ताकि सभी को मौका मिले। फिर बोलते हैं कि यार इसे मुझ पर थोड़ा तो ट्रस्ट करो, अगर उसमें ऐसा कुछ होगा जिससे आपको नुकसान होगा, ऐसी कोई चीज़ मैं आपको क्यों ही दूंगा या क्यों ही दूंगी। आपको ऐसे इतना तो यकीन होना चाहिए, ऐसे इतना खास मैं आपको समझती हूँ या समझता हूँ, आपको इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर कि मैं आपको ऐसे कुछ बकवास चीज़ दूंगा और उसमें हाँ ऐसे नॉर्मल सामान जैसे कुछ अलग से नहीं है, उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? एनीवन? Okay, I'll pick someone randomly. First, like second row from this side. From the center, second row, first person. Second, the one beside. आप क्या करेंगे? Can you repeat the question? The question अभी आपको इससे पहले समझ में आया, उन्होंने रिस्पॉन्ड करा कि आप पहले मुझे बताओ बैग में क्या है, तभी वो मैं बैग लूँगा। फिर वो उसके बदले में बोलते हैं कि आपको मुझ पर ऐसे यकीन वगैरह नहीं है कि यार मैं आपको कुछ, अगर आपके लिए कुछ नुकसान वगैरह होगा ऐसा एक्चुअल में, तो मैं आपको वो बैग नहीं दूंगा, ऐसे आप फ्रेंड समझता हूँ मैं, आपको उतना यकीन नहीं है आपको मुझ पर। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे प्रतीक या प्रिया को? ऑप्शन है, आप बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं फिर भी नहीं लेने वाली हूँ, और आप बोल दोगे हाँ ठीक है कोई नहीं, जस्ट बैग ही तो है, दे दो। मैं अभी भी नहीं लूँगी। थैंक यू फॉर आंसर। मोस्ट लाइकली हाँ या ना, यही दो ऑप्शन बचते हैं, एंड एट द एंड पीपल लाइक दिस कैन बी रियली कन्विंसिंग। वो आपके स्कूल में शो हो सकते हैं, आपको रेगुलरली इंस्टा पे डालना परेशान कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं। तो अब मेनली हम इस पर फोकस करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, और अब अपन फोकस करेंगे कि वो ऐसे क्या टैक्टिक्स यूज में ले सकते हैं। प्रतीक या प्रिया, आप यहाँ पे कोई प्रिया नाम की बंदी तो नहीं है ना? ओके, दूसरा नाम चूज कर लेते हैं। रेशमा, रेशमा नाम की कोई नहीं है? टियारा, टियारा नहीं है। ओके, तो लेट्स से प्रतीक नहीं है कोई यहाँ पे? प्रियांश, प्रियांश नहीं है भी? ओके, तो इट्स प्रियांश एंड टियारा, नेगेटिव नाम क्लियर काम में नहीं लेंगे। तो प्रियांश या फिर टियारा नाम के किस्म के लोग आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे यूज लेने का प्रयास कर सकते हैं? तो फिर वो धीरे, सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप किसी शुरुआत में बात करते हैं, आपको लग सकता है कि ये तो काफ़ी सही है, मुझे इनसे बात करते हुए 2 महीने हो चुके हैं, मैंने मुझ पर कुछ भी प्रेशर नहीं डाला। पर ये हमेशा ध्यान रखें, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो पहले आप पूरा ट्रस्ट होगा जब आपको उन पर, तभी वो आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं, क्षति पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दे विल बिल्ड ट्रस्ट बिफोर डूइंग एनी हार्म। एंड सो द फर्स्ट थिंग दे माइट यूज इज लाइक अ स्मॉल सीक्रेट। वो शुरुआत में छोटा सीक्रेट आपको बता सकते हैं जो कि गलत है, थोड़ा गलत है पर इतना गलत नहीं है। वो कह सकते हैं कि आज मैं घर वालों को बोला ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन जा रही हूँ और मैंने फ्रेंड्स के साथ में गोलगप्पे खाए। इट्स रॉन्ग, गलत है, पर दुनिया का सबसे गलत काम नहीं है। तो आपको शुरुआत में ऐसी कोई गलत चीज़ बता सकते हैं या फिर आपको ऐसे कुछ सीक्रेट बता सकते हैं शुरुआत में, जस्ट टू फिगर आउट कि आप उनको कितना ट्रस्ट करते हैं एंड जस्ट टू मेक यू ट्रस्ट देम मोर। वो हो सकता है जब आप उनकी कोई बात नहीं मानते हैं तो आपको कह सकते हैं कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है। वो बहुत ही जल्दी आपके साथ में इमोशनल अटैचमेंट करने की कोशिश करते हैं कि
आप इमोशनली अटैच हो जाएं, तो फिर उसके बाद में कि शुरुआत में बोल देंगे कि आपको बात करें 5 दिन हुए हैं कि आप बहुत खास हैं, मुझे इतने कम टाइम में आप कितने खास हैं पता चल चुका है, एंड यू आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फ्रेंड आई हैव बीन होपिंग फॉर। फिर धीरे धीरे वो जब इस इमोशनल अटैचमेंट को वो बाद में इमोशनल ब्लैकमेल के लिए यूज ले सकते हैं, तो भी लाइक मैंने आपके लिए इतना कुछ करा, मैं आपको इतना खास समझता हूँ या समझती हूँ, तो आप मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करते, डोंट यू ट्रस्ट मी। तो इस प्रकार के लाइन्स यूज में ले सकते हैं। वो आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे टू मेक यू फील स्पेशल, टू एनहांस द इमोशनल अटैचमेंट दैट यू हैव विद देम। वो आपको गिफ्ट्स, मनी या फेवर्स दे सकते हैं। फेवर बहुत छोटे बहुत बड़े कैसे भी हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए कोई अगर मैं होती सिचुएशन में, इफ अ प्रेडेटर वाज ट्राइंग टू टारगेट मी, दे माइट से ओके तुम्हें स्कूल्स में जाके सेमिनार देने हैं, मैं आपके लिए सारे स्कूल से बात करके अरेंज कर सकता हूँ, इट्स अ फेवर। और वो आप लोगों को कह सकते हैं, मान लो आपके में एग्जाम्स आ रहे हैं, यू नीड टू मेक प्रोजेक्ट्स, दे आर लाइक ओके आई विल डू द प्रोजेक्ट फॉर यू, आई विल डू योर होमवर्क फॉर यू। इट कैन बी स्मॉल फेवर्स, छोटे फेवर्स हो सकते हैं, टू बिग फेवर्स लाइक अरेंजिंग सेमिनार्स फॉर मी। और इसे और पैसे गिफ्ट्स का अपन ने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, प्रियांश या टियारा ने आपको काफ़ी महंगी वॉच गिफ्ट करी थी, तो ऐसे भी हो सकते हैं। और वो आप उन्हें ना बोलते हैं तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ नो ऑन योर एंड, दे विल ट्राई टू नेगोशिएट विद यू, इतना नहीं तो इतना तो कर ही सकते हो यार, अच्छा तुम ठीक है तुम स्कूल के आगे से मत लेना, तुम्हारे को बस में बैठोगे वहाँ पर पकड़ा देंगे, दे ट्राई टू नेगोशिएट विद यू, डोंट यू ट्रस्ट मी टाइप की टैक्टिक यूज में ले सकते हैं कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल, एंड दे माइट ऑल्सो एंड थ्रेटनिंग, ये आपको थ्रेट्स कर सकते हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, आई विल कम अप टू योर हाउस, आई विल टेल योर पेरेंट्स दैट यू यूज इंस्टा, और माइट ट्राई टू ब्लैकमेल यू विद एनी सीक्रेट्स दैट यू माइट हैव टोल्ड देम प्रायर टू दिस। तो इस प्रकार की बातें वो कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि कोई स्ट्रेंजर ही हो, वो ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है जिसे आप पहले से जानते हैं, बिकॉज इफ़ यू ऑलरेडी नो द पर्सन, वहाँ पर ट्रस्ट ऑलरेडी काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश्ड है, दे डोंट नीड टू वर्क एज हार्ड टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट विथ यू एंड यूज यू अल्टीमेटली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं चाहूँगी आप सभी याद रखें, ऐसा कोई भी इंसान जो आपकी इज्जत करता है, एनीवन हू रिस्पेक्ट्स यू विल नॉट प्रेशर यू, विल नॉट रश यू, विल नॉट डिमांड सीक्रेसी। ऐसा कोई भी इंसान जो आपकी इज्जत करता है वो आपको जल्दीबाजी करने के लिए प्रेशर नहीं करेगा, कोई दबाव नहीं डालेगा आप पर, और आपसे कभी भी ऐसी सीक्रेसी डिमांड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स, आप खुद से सोचो कि सीक्रेसी क्या होती है। एक फ्रेंड बोले कि यार घर पे ग्लास टूटा, सब सोच रहे किसी होता, मैंने तोड़ा, दिस आर लाइक स्मॉल सीक्रेट्स व्हिच आर नॉट रियली हार्मफुल, बट बिग सीक्रेट्स व्हिच माइट, जिनको आप सीक्रेट रखने में आपको असहज महसूस हो, आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो, वो ऐसे सीक्रेट्स आपको रखने को कभी नहीं कहने वाले हैं। एंड एवरी रिलेशंस फाउंडेशन इज रिस्पेक्ट। हर रिश्ते की नींव इज्जत है, बिना इज्जत के कोई रिश्ता किसी प्रकार का भी नहीं हो सकता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रूल्स, भले ही मैं आपको 1000 बार कह दूँ, आपके टीचर्स आपको 1000 बार कह दें, ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करनी, फ्रेंड्स वगैरह से भी मिलने जाना है तो कम जाओ, इतना संभल के रहो, आप सब नहीं मानने वाले हैं, श्योर ऑफ दैट। तो अगर मैंने इतनी बातें जो भी कही हैं और आगे जो कहने वाली हूँ, अगर आप उनमें से कुछ भी याद नहीं रखते हैं, ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है। अगर आप किसी से भी, फ्रेंड हो, अनजान हो, कोई भी हो, किसी से भी आप स्कूल वगैरह या घर के इनके बाहर कहीं भी किसी से भी मिलने जाते हैं, तो ये 3 रूल्स हमेशा फॉलो करें। इन्फॉर्म अ ट्रस्टेड पर्सन, किसी बड़े को जिस पर आपको यकीन है उन्हें बता के जाना है कि मैं इससे मिलने जा रही हूँ या इससे मिलने जा रहा हूँ। एग्जैक्ट नाम, सारी डिटेल्स आप उन्हें हमेशा इन्फॉर्म करके जाएं, बता के जाएं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियंस हो सकते हैं, घर में कोई बड़ा अगर समझदार है वो हो सकता है, मेरे आपके बड़े भाई बहन हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर ओल्ड इनफ, आप उन्हें बता सकते हैं। ऑलवेज इन्फॉर्म समवन कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करें, कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं वो बताएं। एंड इफ यू हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स, डू शेयर योर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द स्मार्टफोन थ्रू लाइव लोकेशन और एप्स लाइक लाइव 360 which I personally use। और हमेशा हमेशा एक पब्लिक प्लेस चूज करें, किसी अनजान जगह, खंडर में जाना मे बी
प्रतीक या प्रिया आपसे बैग लेने की जगह बोलते हैं हे लेट्स मीट अप, मैं आपको इतना टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ, I've known you for months, maybe let's meet up, it's my birthday, let's go out to celebrate, वो ऐसी बातें कर सकते हैं. We don't exactly know who Prateek or Priya is, so beware. हमेशा एक public place choose करें. There's a lot of places you can hang out, a park, a garden, some shop, चौपाटी, कहीं भी. Always choose a public place. कभी किसी के से अनजान उसने बोला कि मेरे घर के अंदर, एक थोड़ी अनजान सी जगह है, सुनसान सी जगह है, ऐसी जगह नहीं जाना है. ओके, अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान आपसे ऑलरेडी बात कर रहा है, मे बी समहाउ यू एंड अप इन द सिचुएशन कि प्रियांश या टियारा प्रकार के इंसान आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? वेल, उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहले समझो इट्स नॉट योर फॉल्ट, यू आर नॉट द वन टू ब्लेम. गलती उनकी है, आपसे एक छोटी सी भूल हुई है, यू जस्ट मिस्टेड द साइन. आपसे ज़्यादा गलती उनकी है, आपकी गलती नहीं है, ये हमेशा याद रखें. और किसी बड़े को बताएं, किसी ट्रस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करें. अगर आपकी बात उनसे ऑनलाइन होती है, मे बी स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इमीडिएटली ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम. फेस टू फेस बात हो रही है तो भी स्टॉप टॉकिंग टू देम. जस्ट स्टॉप ऑल कम्युनिकेशन विद देम इमीडिएटली. उनसे हर किस्म की बात करना तुरंत बंद कर दें. कोई लास्ट गुड बाय टेक्स्ट मैसेज, मीम्स का रिप्लाई, कुछ भी नहीं. जस्ट स्टॉप ऑल कम्युनिकेशन इमीडिएटली. एंड ऑब्वियसली सेव ऑल चैट्स, इमेजेस, मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग. जितने भी एविडेंसेस आपके पास हैं, सेव देम. इसके मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं. पहली बात तो कल को इफ़ यू फील कि आपको कुछ लीगल एक्शन लेना है उनके खिलाफ, यू कैन. एंड इवन इफ आपको लीगल एक्शन नहीं भी लेना है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें अगर पता होगा कि आपके पास एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, वो मैसेज डिलीट वगैरह करना उनका यूजलेस होगा. वो चाह के भी एविडेंस मिटा नहीं पाएंगे, नंबर 1. एंड नंबर 2, अगर उन्हें पता है आपके पास एविडेंस है, वो आपको दोबारा परेशान करने से पहले 1000 बार सोचेंगे. तो इट विल बी वेरी यूजफुल. सारे एविडेंस इकट्ठे करें. एविडेंस क्या हो सकता है? आपके इमेजेस, कुछ भी, चैट के स्क्रीनशॉट्स, मैसेज के स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल आपने आपस में कॉल्स पर बात करी, उसके स्क्रीनशॉट्स. इस प्रकार की सब चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट्स लेके रखें. स्टोर देम until you feel it is safe enough, it's been quite some time and that person has not been irritating you, then you can move on. And फिर भी सबसे ज़रूरी, I'll reiterate this, tell a trusted adult. वो trusted adult कौन हो सकता है? आपके पेरेंट्स या गार्जियंस, घर में कोई भी बड़े, दादा दादी, दीदी, भैया, स्कूल अथॉरिटीज़. स्कूल में अक्सर ऐसे कोई ना कोई टीचर होते हैं जिनसे आपको लगता है आप आराम से बात कर सकते हैं, फ्रीली बात कर सकते हैं. वो थोड़े कम स्ट्रिक्ट हैं, आप उन्हें बता सकते हैं. दे विल बी देयर टू हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट, ट्रस्ट मी. एंड अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप ना स्कूल अथॉरिटीज़ को बता सकते हैं, ना पेरेंट्स को, ना गार्जियंस को, यू आर स्टक इन सिचुएशन, यू कैन ऑलवेज कॉल द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर. क्या किसी को पता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? Child helpline number is 1098. Okay, very good. And an easy trick to remember it would be just count backwards from 10, 10, 9, 8. That's the 4-digit number. And अगर ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, you can always report it to the cyber crime helpline number. वो किसी को पता है? मुझे भी नहीं पता. आई हैव गिवन दिस स्पीच like 12 times. मुझे भी नहीं पता. It's 1930-1930 एंड आप इनकी वेबसाइट पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज गूगल दीज नंबर्स इफ यू फॉरगेट. सो या यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट देम हियर if it is serious enough. और अभी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर यू कैन ऑल्सो यूज इट टू रिपोर्ट स्कैम्स. आजकल स्कैम्स विद द यूज ऑफ AI have been getting smarter and smarter, so you can use them. अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? Anyone wants to answer this? Should I pick or should I answer? Okay, I'll pick because I'm both.
from the boys' side, the one in the crack jacket, the last row, third person, the one who's looking down. Oh, yeah. Okay, yeah. Also, just know if you are looking down, trying to avoid eye contact, I am going to pick you. Okay, so the question is, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड से आपके फ्रेंड को कोई ऐसा इंसान परेशान कर रहा है, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था टियारा या प्रियांश टाइप का, तो आप क्या करेंगे? You need to bring your mic to the face to answer. नीचे से नहीं होगा. ओके, हाउ अबाउट मैं आपको ऑप्शंस दूँ, आप उनमें से पिक कर लो, आप क्या करोगे वो सही है? ओके, आप उनसे उन्हें थोड़ा डांटो, डराओ, समझाओ कि पागल वगैरह कैसे बेवकूफ़ लोगों से बात कर रहा है. उन्हें आप डरा सकते हैं कि ऐसे लोग मुझे किडनैप कर लेंगे तो किडनैप हो जाएगा, तेरे ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे. आप उन्हें कुछ भी कहानी बना के डरा सकते हैं. या फिर आप किसी बड़े को बता सकते हैं कि ये उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी ऐसे किसी इंसान से बात कर रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं. A, B, C, which one? Should I repeat the options? C. C, you'll inform the trusted adults. That is the right option. Sit down. You guys can clap. Okay, that went well. But हाँ, आप उन्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करें, दोष नहीं देंगे. तेरी गलती है, तुम किस पागलों की तरह अनजान इंसानों से बात कर रही थी या कर रहा था, ऐसे नहीं बोलना है. डोंट ब्लेम देम. पहले से मानसिक स्थिति काफ़ी डिप्रेस्ड या सैड फील कर रहे हो सकते हैं. यू ब्लेमिंग देम इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम. आप उन्हें डराएं नहीं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट में डराना नहीं है. उनका मजाक नहीं बनाना है, उन्हें टीज नहीं करना है, चिढ़ाना नहीं है. और तो और अब आपको करना क्या है, उनकी पूरी बात सुननी है बिना उन्हें जज करे. कि वो आपको पूरा बता सकते हैं कि ऐसे 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 से मेरी बात हुई थी, इंस्टा पे ऐसे मैंने तो उसने ये कहा था. उन्हें बिना जज करे, बिना ऐसा सोचे कि ये पागल है, इनकी गलती है, उन्हें उनका कुछ भी बिना नेगेटिव सोचे, आप उनकी पूरी बात सुने, अच्छे से सुने और उन्हें बढ़ावा दें कि खुद से भी वो बात कर लें किसी बड़े से, किसी ट्रस्टेड अडल्ट से. अगर वो खुद से बात नहीं करनी है तो उस स्थिति में आप खुद जाके भी बता सकते हैं. पर पहले कोशिश यही करें कि आप उन्हें खुद से बताने का मौका दें. बिकॉज इन सच सिचुएशंस पीपल फील दे हैव नो कंट्रोल. तो अगर वो खुद से बताते हैं, इट माइट बी लाइक रीगेनिंग कंट्रोल इन अ मैनर. और आप उन्हें सारे सबूत इकट्ठे करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं. आप उनके साथ रहें, उन्हें अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें. अब मेजर पार्ट बहुत पूरा हो चुका है. आगे जो टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, यू गाइस हैव मोस्ट लाइकली स्टडीड देम during social sciences, moral sciences, other stuff like that. So really quick. So gender equality. Anybody wants to answer gender equality? होता क्या है? No difference between male and female. Okay, that is quite right. Put it down. No difference, but that might be a bit tricky. इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है because inherently कुछ तो difference होंगे. ऐसे तो फिर कैटेगरी भी खत्म कर देंगे स्पोर्ट्स में. Let's take an example of Olympics. No male female Olympics separately, दोनों साथ में लड़ो. And biologically men are stronger in certain aspects than females. So फिर it will be quite an issue. So it does not mean no difference, you're on the right track. It just means treating both of them equally and justly. So किस aspect में उन्हें equally treat करना है? Regarding rights, दोनों को equal हक मिलने चाहिए. Opportunities, दोनों को बराबर अवसर मिलने चाहिए. And respect, दोनों को बराबर respect से treat करना चाहिए. And ये एक अवधारणा रहती है अक्सर, like such gender equality is a key pillar of ideologies such as feminism. उसमें कि मिसकंसेप्शन या अवधारणा रहती है कि फेमिनिज्म मीन्स वुमेन आर सुपीरियर टू मेन. दैट इज मिसैंड्री, नॉट फेमिनिज्म. सो जेंडर इक्वालिटी जस्ट मीन्स nobody is superior to no one. Both of the people are equal.
there is equality, no superiority, just fairness. ओके, तो आपको अपने आसपास कहाँ ऐसी जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है? एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट? यस, श्योर. एट होम इटसेल्फ. होम पे एग्जाम्पल जैसे कहाँ पे होम में ऐसा क्या होता है जो कि आपको लगता है इनइक्वल? My parents differentiate between me and my brother. If you feel comfortable, want to answer नहीं है तो वरी how? Like exactly जैसे for example घर पे आप आए, आपको काम करने को कह दिया, भाई आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल? In studies. In studies. Okay, thank you. It's quite brave to answer that. Boys, आपको ऐसा कहीं लगता है कि लड़कियों को ऊपर ट्रीट करते हैं लड़कों से? नॉट कि हमें थप्पड़ मार देते हैं, लड़कियों के नहीं मारते प्रोफेसर, ये नहीं चलेगा. मुझे कुटने का कोई चाव नहीं है, और सोचना पड़ेगा आपको. या ऐसा सर जेन्युइन आंसर्स. आई विल पिक रैंडमली. सबसे नीचे कौन दिख रहा है? लास्ट इस तरफ से थर्ड रो, पीछे से थर्ड पर्सन. बगल वाली रो में थर्ड पर्सन पीछे से. आपको अपने आसपास कहाँ लगता है कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको फील होता है कि लड़कियों को ज़्यादा सुपीरियर रखा जा रहा है एज कम्पेयर टू बॉयज? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं है. वाओ, आई गेस आप काफ़ी इक्वल सोसाइटी में रहते हैं. बट चलिए, आई कैन टेल यू सम एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग लड़कियाँ कई बार ऐसे ज़ोर से हंसती हैं, ज़ोर से बात करती हैं. कई बार कहा जाता है कि ऐसे मत उठो, ऐसे मत बोलो, लड़कियों को शोभा नहीं देता. दे माइट नॉट बी. बॉयज़ को ऐसे नहीं बोलते कि ऐसे जोर से मत हंसो, जोर से मत बोलो, लड़कों को शोभा नहीं देता. अनलेस दोनों में से लड़का हो या लड़की बहुत तेज कुछ कर रहे हो तो ऐसे बोलते इंसानों को शोभा नहीं देता. पर जेंडर स्पेसिफिक बोलना इज डिस्क्रिमिनेशन. और घर पे लड़के और लड़कियों को स्पेसिफिक टाइप के हाउस होल्ड टास्क दिए जाते हैं. लड़कियों को घर संभालने के, कि खाना बनाना, घर साफ करना, इस प्रकार के काम लड़कियों को दिए जाते हैं. लड़कों को कहेंगे वो ऊपर से भारी सामान उतार दो, बाहर मम्मी को, मेरे को अगर अभी जाना है, मेरा भाई होता उसे कहते हैं कि माही को स्कूल छोड़ा, माही का MSIS छोड़ा. ऐसे किसी को ड्राइविंग रिलेटेड टास्क, ऐसे जो घर के बाहर के काम होते हैं वो अक्सर लड़कों को दिए जाते हैं. ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस. और इसके अलावा लड़कियां कभी भी बाहर जाती हैं, उन्हें 1000 बार कहा जाता है कि बेटा किसी अनजान इंसान से बात मत करना, सारे घर वालों के नंबर याद करके जाओ, ये मत करना, वो मत करना. ऐसे थोड़ा एक काम कर, दुपट्टा और लेके चली जाए, कुर्ता पहना है फिर भी. लड़के बाहर जाते हैं, उन्हें कोई नहीं कहने वाला कि बेटा बाहर जा रहे हो, आपकी वजह से किसी को अनकंफर्टेबल महसूस हो, आपकी वजह से कोई भी डरा हुआ महसूस करें, आप किसी के साथ में बदतमीजी ना करें, सभी से रिस्पेक्ट से, सबकी इज्जत से पेश आएँ. आपकी वजह से लोगों को सेफ फील हो, ऐसा नहीं हो अनसेफ किसी को भी आपकी वजह से फील हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो. ऐसा लड़कों को अक्सर कोई नहीं कहता. आपकी करियर चॉइसेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को लड़कियाँ बोलती हैं कि मुझे आर्मी में जाना है, मेनी पेरेंट्स, नॉट ऑल बट मेनी पेरेंट्स माइट से कि इट्स काफ़ी मैन है, उसमें काफ़ी मेल टाइप का फील्ड है, तू कहाँ बंदूक लेकर बॉर्डर पे लड़ेगी. ऐसी बातें कह सकते हैं. लड़का बोलेगा पापा मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है, पापा नहीं मानेंगे. तो आपकी करियर चॉइसेस आपके रहने से रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं. लड़कों कह सकते हैं फेमिनिन टाइप का करियर देख रहे हैं, लड़कों को बोल सकते हैं थोड़ा मैस्कुलिन टाइप का देख लो. तो आपकी करियर चॉइसेस आपके रहने से रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं. अभी इनके अलावा आपको कोई और एग्जाम्पल मेंशन करना है तो अदर देन द वंस आई हैव स्टेटेड? Either you guys think it's too normal that you guys are not understanding inequality, या फिर बहुत ही इक्वल सोसाइटी है. मैं जैसा कॉपर, गोठड़ा, झुंझुनू सब कुछ छोड़ के गई थी, मेरे जाने के बाद बहुत इक्वल हो गए हैं. इक्वल हो गए हैं. अब
राइट्स ऑफ गर्ल्स पे फोकस करेंगे, हक सारे लड़कों के भी बनते हैं, पर अक्सर लड़कियों की राइट्स कर्टेल की जाती हैं. इट माइट बी राइट टू एजुकेशन, मैं पहले कवर कर चुकी हूँ, राइट टू चूज योर ओन करियर, राइट टू बॉडी ऑटोनॉमी एंड राइट टू कंसेंट, एंड लास्टली राइट टू सेफ्टी एंड डिग्निटी. आप सेफ और आपकी लाइफ, it's not covered under right to life. Yes. The one thing I have seen as a teacher, as a student, every time कि यहाँ पे बहुत लड़कियाँ या जो पास आउट आप हो चुके हो आपके आसपास में उससे कोरिलेट भी करते हो कि जब भी आप हायर एजुकेशन का सोचते हैं या आउटसाइड जाना है, कहीं भी जाना है, मैंने आसपास में बहुत लोगों को देखा है, देवर है कि नहीं लड़की को उतनी दूर नहीं भेजेगा, बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी. 90% ला के लड़की 99% ला के शी इज़ डूइंग अ नॉर्मल कॉलेज, डिस्टेंस कॉलेज, और बच्चा 60-65% लड़का ले आया, नहीं इसको तो IIT करा देते हैं. फर्स्ट थॉट उनका है कि अरे इसको पढ़ के करना कि इसको तो दूसरे के घर जाना है. लड़कों का कि तो हमारा कमाने खाने वाला है, हम तो सारी ज़िंदगी इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे. दैट्स द मेजर थिंग आई हैव सीन इवन एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर. आज भी मैं ये चीज़ें जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं ना यहाँ से, उनकी स्टोरी मैं सुनती हूँ कि 98% लाके हैं, क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लिया मैम डिस्टेंस से या BEd कर लिया है, घर वाले कह रहे हैं टीचर बन जाओ सबसे सही है. I can paint, that is an amazing example ma'am, thank you very much, and I can painfully relate to it. जैसे कि मेरा बैंगलोर में कॉलेज में हुआ था, मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी कन्विंस थे कि कहीं भी जाना है, बच्चे को अच्छी कॉलेज मिल रही है, अच्छी कॉलेज में ही भेजना है. बट मेनी पीपल वर लाइक ओके बैंगलोर थोड़ा दूर है, लड़की इतनी दूर रहेगी, हाथ से निकल जाएगी, तो इतना दूर, इतनी दूर, सेफ्टी. Many people were kind of discouraging, so I can relate to that, and it is painfully true. Thank you, ma'am, for the excellent point. And अभी आप मैंने highlight करा, मैम ने highlight करा, there are many inequalities around you. So what can boys do to help stop them? You can respect boundaries and consent of the people around you. अगर आपके आसपास कोई भी इंसान कहता है कि don't do this, I'm uncomfortable, you should stop immediately. Your responsibility as a human being. And आपने आसपास जोक्स सुने होंगे, लड़कियों को ड्राइव करना नहीं आता, women are dumb, इस तरह के आपने जोक्स सुने होंगे, लड़के के विषय में भी ऐसे जोक्स होते हैं. तो you should challenge such gender biased jokes, and many of them are factual. For example, the one about women not knowing how to drive. Mostly accidents men करते हैं, both in number and in ratio. It is factually incorrect. और आप आपके आसपास आपके फीमेल क्लासमेट्स हैं, आपके घर में भैया, दीदी, मम्मा, जो भी लोग हैं, अगर वो ऐसी कोई बात के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें सपोर्ट करें जिस प्रकार से कि आप उन्हें कर सकते हैं. उनको आप सपोर्ट करें कि वो खुद से आवाज़ उठाएं, अगर उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़े. और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू शुड शेयर देम आउटसाइड होम. खाना बनाना, घर संभालना सभी को आना चाहिए, ड्राइविंग सभी को आना चाहिए. यू शुड बी एबल टू सर्वाइव इंडिपेंडेंटली. एंड लास्टली अ वेरी शॉर्ट सेगमेंट रिगार्डिंग योर चाइल्ड राइट्स, which some of which I've already covered, like right to education and equal opportunity, right to health and nutrition. You should be protected from abuse, trafficking, and child labor. Another important point which I would like to highlight is many the predators which I mentioned, examples that we took of Priyansh and Tiara. People like these might not stop at just using you. Trafficking cases इंडिया में काफ़ी हाई होते हैं. स्टीरियोटाइपिंग केसेस सदर्न इंडिया में होते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में भी खूब होते हैं. They are just not highlighted as much. So you guys should be aware, people about trafficking. The dangers are quite high, not just mere manipulation. And right to privacy and digital safety, that is an important right you guys should be concerned about. And every right comes with responsibility. So you guys should respect diversity, that is one of your responsibilities. आपके आसपास आपने काफ़ी कमेंट्स हैं, जोक्स सुने होंगे अबाउट अ पर्टिकुलर कास्ट, जेंडर, रिलीजन. ऐसे कुछ भी बात करने से पहले हमेशा याद रखें, इट्स sheer luck कि you are from this privileged gender, caste or religion.
यू गाइस आपने खुद से कुछ अचीव नहीं करा है, आपके खुद के कुछ एफर्ट्स नहीं है, दैट यू आर अ बॉय और अ गर्ल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट और फ्रॉम अ पर्टिकुलर जेंडर, आपको कोई हक नहीं है इस चीज़ को फ्लेक्स करने का, इस चीज़ पे आप किसी और को बुली करो, किसी और के ऊपर बुरे कमेंट्स करो, ऐसा कुछ भी करने का आपका कोई हक नहीं बनता है। एंड इट इज़ क्वाइट प्रेवलेंट, आप अपने आसपास बहुत से मीम्स स्टेटसेस आप देखने को मिलेंगे, यू कैन फाइंड इट। इनफैक्ट अगर आप आसपास देखोगे कहीं ना कहीं किसी ने अपना कास्ट लिख रखा होगा जस्ट एज अ फ्लेक्स रैंडमली ब्लैक बोर्ड पे आपके आसपास। एंड इफ अगर आपको अपने आसपास में वायलेशंस देखने को मिलते हैं, रिपोर्ट देम फॉर ट्रस्टेड अडल्ट और चाइल्ड हेल्पलाइन। आप ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ जो इंसान अभी विक्टिम है उसे नहीं बचा रहे हैं, यू आर सेविंग फ्यूचर विक्टिम्स एंड यू नेवर नो हु द नेक्स्ट विक्टिम माइट बी। They might be a younger sister or brother, someone you deeply care for. तो प्लीज़ आपको अपने आसपास में कुछ देखने को मिलता है, report it to trusted adults. And that's it, guys. Thank you very much for your time, and thank you to my university for providing me the opportunity, and thank you above all to the staff, Shravani International School staff, for giving me a stage, opportunity, and a voice to be able to share my ideas with you guys. Thank you. Before I go, any doubts? आपको कोई भी डाउट है? अगर आप कोई बात से डिसएग्री करते हैं तो आप can say that out loud right now. About anything about CLAT, about the session that I took, anything. So I assume you guys have understood everything and agree with everything जो कि मैंने अभी सब कुछ बोला है. Yep. जैसे आपने अभी बताया कि गर्ल्स के लिए इतने राइट्स हैं, ऐसे कुछ आपने वो सेक्शन यूज़ किया था, तो उसके अंदर मेरा ये मानना है कि गर्ल्स भी कुछ तक उन राइट्स को गलत वे में यूज़ कर रही है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लाइक जैसे किसी लड़की ने कुछ लड़कों को ऐसे कुछ बोल दिया, अगर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं तो फिर सोसाइटी में लाइक oh how can you say like that and she is girl and like that. So what do you say about that? Okay, so first of all, I agree that is a slight problem. But if we compare the ratio to the women who have these rights taken away from them, and the ratio of women who are using these rights for wrong, that is quite low. And the rights that I have mentioned, I don't feel like any of them could be misused. Let me know if I'm wrong. The rights that I've covered right to education, and my PPT is malfunctioning, just a second. Okay, yeah, the rights that I've covered are right to education. I don't see how you could use that for the wrong. Right to choose career, I don't see that. Right to bodily autonomy and consent, and right to safety and dignity. Which one of these rights do you feel is being used for the wrong the most? I'm not blaming your rights, but like generally if we see then So as an inequality against men, you're saying? Yeah. Okay, yeah. That might be a problem, but also the number of cases is quite low, and that is a problem which should be considered, I agree. But the ratio, if you compare the number of women who are using it for wrong and the number of women who are actually having these rights taken away from them the difference is quite huge. What I would like to say. Anything else? okay, thank you. Anyone else? Yep. So I want to tell that I think there should be in each and every school a counseling for boys also to respect girls and to like that. Yeah, that is a huge point and that can help. But I feel it's just even if the schools take the counseling, the issue is too much deep rooted. For example, mostly lessons जैसे मैंने अभी भी highlight करा था कि concept के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए. सिर्फ एक session से पूरी thinking change करना बहुत मुश्किल होने वाला है. And it is already covered with the lesson plans
about everything that teachers are already telling you. So I think already काफी sufficiently covered है. I don't feel कि एक session hold करने से major difference होने वाला है. I think if we do need to take up a session, it would be with parents that would be more helpful because they are the ones who are responsible for the thought process of the kids. Do you agree with that or disagree? Thank you for your point. Anyone else? Ma'am, so is there we need to answer the mathematics question from the paragraph also? Okay, yeah, you need to answer mathematics questions from the paragraph. उसमें जितना भी data होता है, it is given, for example, एक shopkeeper है, उसके इतना profit हुआ, इतना सब कुछ हुआ, it is given in the paragraph. Then you tabulate it, you extract the information that you can actually use and answer based on it. You know the word problems that you get in mathematics? Exams वगैरह word problems. It's similar to that, but थोड़ा उसका 5 times बड़ा. Yes, ma'am. Okay, anything else? Anyone? Ma'am, but if there is that we need to create a data कि अगर हमें एक शॉपकीपर के बारे में दिया है कि ये रोज का इतना प्रॉफिट कमाता है और एक रोज इतना लॉस होता है इसका, तो उसका भी ऐसे करना है क्या? हाँ, मैं आपको एग्जांपल देंगे समझा और शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं. मैंने उसमें एग्जांपल में दिया दैट ही सेल्स एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स, वाई अमाउंट ऑफ गुड्स, इतना वेस्ट जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, इतने डैमेज आ गए, दे गिव द डेटा लाइक दैट. हो सकता है एक और दूसरे शॉपकीपर का भी दे दें. फिर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हो सकता है calculate the cost of goods sold, calculate the revenue, calculate the expenses that are not related to sales, for example transportation etc. फिर आपको परसेंटेज करने को दे सकते हैं कि how what is the percentage or the ratio of shopkeeper A to shopkeeper B. 5 शॉपकीपर दे सकते हैं, कह सकते हैं इनमें से कौन से शॉपकीपर का हाईएस्ट है. इस प्रकार से the math is not that hard, you just need to be quick at it. Generally, it's just about speed regarding mathematics. Lawyers don't know much math, the stereotype is correct. Ma'am, if there is any question which answer is not in the paragraph but from outside. No, there is no such question. हाँ, formula वगैरह आपको पहले से याद होना चाहिए. That is a different aspect. पर mostly data आपको paragraph में ही मिल जाएगा. Yes, ma'am. यानी कि हमें मोस्टली पैराग्राफ में ही डेटा मिल जाएगा. या पैराग्राफ में सारा ही डेटा सारा पैराग्राफ में मिलेगा. हाँ. उसके बाहर से कुछ नहीं है. हाँ, बस फॉर्मूला याद रखना है. या. बाकी सारा डाटा हमें वहाँ पर मिल जाएगा. या आप वो आंसर करें उससे पहले यहाँ पर एक बच्चे को डाउट था. Ma'am, as you tell that on social media, the criminals can tease us on Instagram, Snapchat. They can also tease us on WhatsApp. Yeah, they can if they get a hold of your number. पर उसमें कम होता है बिकॉज उसमें आपके पास क्रिमिनल की पर्सनल जानकारी कहीं ज़्यादा होती है. एंड डिलीटिंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत ही उसमें अकाउंटेबल आप व्हाट्सएप पे कम होल्ड कर सकते हो. होता है पर काफ़ी कम. इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक रेयरली, पर इस टाइप के जो मीडियम्स हैं वो ज़्यादा यूज लिए जाते हैं बिकॉज उसमें अकाउंटेबल होल्ड करने के चांसेस कम होते हैं. और हम जब भी गर्ल्स वुमेन्स जो हैं वो जब भी घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये कहा जाता है कि बाहर जाके ज़्यादा बोलना मत. क्यों? ओके, सो इट इज़ डेफिनेटली इक्वल ट्रीटमेंट. उसके पीछे रीजनिंग ये होती है कि जनरली अपने बिलीव करते हैं वुमेन शुड बी डोसाइल, थोड़ा सा शर्मा के. 1980s की फिल्मों में हीरोइन देखिए कैसी होती हैं, उस टाइप की एक्सपेक्ट करते हैं कैसे एकदम सुंदर सुशील, ज़्यादा बोले नहीं. अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपको आउटस्पोकन सामने वाले समझते हैं एंड जस्ट पीपल वांट टू प्रिवेंट दैट. इसलिए थोड़ा लड़की को हाथ से निकल गई ऐसा बोल सकते हैं. दे डू दिस फॉर दैट रीजन एंड इट इज़ अनइक्वल. आई एग्री, ऐसा नहीं होना चाहिए. And when we go outside, many of the people also outside tell us that walk perfectly, don't talk too much, be attentive, and they talk us that
how to walk. Why? Okay, so they generally, that is unequal. I agree. मुझे भी कहा गया है कि हाथी की तरह मत चल. Basically, they just want you to be as appealing, stereotypical. Imagine करो मुझे कप्स बनाने हैं, तो मेरे आइडिया में इकलौता परफेक्ट वर्जन इस कप का यही है. अगर मेरे पास में कौन सा कप बन रहा है नहीं, इसके ऐसा डिट्टो ऐसा ही बनाओ. अगर इस कप का कलर ऐसे कलर का होना चाहिए, तो उनके दिमाग में जो परफेक्ट आइडियल है कि एक परफेक्ट लड़की कैसी होनी चाहिए, they are trying to kind of fit. उनको कुछ लोगों के मोटिव जेन्युइनली अच्छे हो सकते हैं, उनको जेन्युइनली लगता हो सकता है कि इफ़ यू फिट दिस परफेक्ट मोल्ड, आप ऐसे परफेक्ट आइडियल उनके दिमाग में जो लड़की है अगर आप वैसे बन जाएंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. बट यू आर राइट, दिस इज अनइक्वल, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग. Thank you, ma'am, for clearing my doubts. Okay, also just that you seem interested in this topic, there is an author called Nivedita Menon. I think आपको उनका वर्क पसंद आएगा, आप ऑनलाइन गूगल करके देख सकते हैं. You've been waiting for quite some time. Thank you for your patience. कोई हमको किडनैप कर रहा हो और उस टाइम हमारे पास फोन भी ना हो, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं? Okay, so try to make as much noise as you can. इतना शोर आप कर सकते हैं. सुनसान जगहों को. पहले वो सुनसान, okay, first of all try not to go to a sunsan place and also learn some basic self-defense. For example, or try to hit them at places. For example, you can try to hit them on the elbows, on the groin area, on the stomach. You can try to scoop out their eyes like this. So try to get around their face. Try to attack them. Make distance. से दूरी बनाओ physically. Run away, and you can find many self-defense tips online. You can look them up. Work on them. So try to, number one, self-defense tips use लो, जो कर सकते हो उतना करो, और create distance, जितना उनसे दूर जा सकते हो दूर जाओ. Try to adult, try to get to a phone and get to safety. Thank you. You're welcome. Anyone else? Due to shortage of time, this will be the last round that I will take, so I apologize if any doubts are unanswered. Hello. I want to ask two questions actually. First, tell the students about the exam, when these exams held during the years. And the second is, can you briefly explain some professional courses, as I know you are from the humanities stream. So can you tell some professional courses which pay high actually to the students from humanities and commerce? Okay, so for commerce, obviously people. Okay, first of all, answer about the exam. Sure. So the exam is every year held in the first Sunday of December, and also another exam very similar to CLAT for NLU in Delhi. In Delhi, second NLU in India, that is held in Sunday, and the results are quite quick, so you can fill in the form online. The registration fee is around 4,000. It's high, I know. And also regarding the courses that you can take for as a student from humanities stream or commerce stream. For humanities, you can go through take up courses regarding anthropology, sociology, and politics courses in that. And you can work in policy making, which is quite beneficial and it is quite useful. And also that amazing option, you can give CLAT, and the packages are quite high paying. The packages are quite good. It's one of the major reasons also why I choose law. So you can also give law regarding whatever stream you want. These are the options that I'm aware of. If I come across anything else, I'll let you guys know. Thank you, Mahika, for enlightening the students. Give her huge round of applause to them. She really expresses her knowledge about safety and gender equality, lots of different aspects. But safety, I must say that in tier 1 cities, it is really a practical thing. But in rural areas, these students are so advanced. I must say, they are so advanced in their tactics.
Better their general IQ is above the teacher's IQ, I must say. They are quite extraordinary in such type of approaches. But smartphone using, you are talking about the usage of smartphones, which is quite interesting and sensitive also, because nowadays the students have this type of tendency that they have taken for granted for such apps that they can easily register on whatever new apps they install in their mobile phone, but sometimes it may be so drastic for them. Okay, beta? So please be aware, whatever Mahika was suggesting you during her session, I must say these elements will be productive for you. And the another thing, Tarun, you were constantly asking that about male security, beta. So I must say that there is no he without she. Okay, beta? That aspect you must acknowledge, beta. There is no he without she. So women empowerment is the truth of nowadays. So, okay, beta, congratulations for your session, wonderful session, I must say. You are quite fabulous in your thought process. Now I would like to invite our director, sir, to enlighten us. माहिका को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरे सामने बैठी बहुत सारी और आपको भी मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुस्तान में नॉर्थ इंडिया के अंदर शेखावाटी में झुंझुनू महिला शिक्षा में अव्वल है, रहता आया है और आगे भी रहेगा। आपके सामने नमूना है। शेखावाटी में झुंझुनू एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लड़कियों की शिक्षा को लड़कों से ज्यादा तर्जुमा दी जाती है। इसके पापा प्रिंसिपल हैं, तातीजा में मेरे अच्छे मित्र हैं। 5 तारीख को हमारी काफी देर मीटिंग भी हुई थी झुंझुनू में। तो बातें ये चल रही थी कि अब लोगों की सोच बदल रही है और ये सोच बदलेगी। झुंझुनू जिला राजस्थान का वो जिला है जहां से कमला बेनीवाल पहली विधायक बनी थी। अपने कहां की रहने वाली थी, पता किसी को? नहीं पता है, पता लगाना। उसके पापा उसको दाखिला कराने के लिए वंशली ले गए थे और वंशली में उसको एडमिशन करा दिया तो गांव ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया कि तेरू छोरी नहीं ब्याई जाए तो तू माने दे दे। तो चंदो के छोरी ब्याह देता तू बिना कटे छोड़े। और बेचारे को लंबे अरसे तक शिक्षा गांव के हुक्का पानी से बंद कर दिया, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया। वही कमला बेनीवाल राजस्थान की विधानसभा में पहली महिला बनी और पहली मंत्री बनी महिलाओं में, वो जिला अपना। तो हम सबको आगे और बढ़ना है और मैं बेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यू आर स्टडीइंग इन सच रेपुटेड इंस्टीट्यूट। दैट इज नॉट अप्रोचेबल। वहां सिर्फ जजेज होते हैं, इलिसिट क्लास के लोग जाते हैं, मुझे पता है। लेकिन यहां से 3 लड़कियां गई हैं क्लैट के अंदर। तमन्ना आने वाले समय में वो जज बन के आएगी। कंचन जो पूना से कर रही है, और आपके सामने माही जो बेंगलोर की सबसे रेपुटेड इंस्टीट्यूट है वहां से कर रही है। और मेरे को पता है थोड़ी सी आप में संकोच है, वो दूर करेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, यहाँ लॉट ऑफ टैलेंट हम देख रहे हैं कि आप में इतना टैलेंट है। वास्तव में मैं तो खुद दंग रह गया। सौम्या भी इतनी शानदार क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं खुद सरप्राइज कर रहा था। ये ठेठ मेरे गांव से है और जब ये बेटे आगे जाएंगे तो मेरा तो सीना चौड़ा हो जाएगा। इसलिए तो मैं कर रहा हूं। आपको नए सेशन में मैं खुद यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। जो 11th के बच्चे आएंगे, +2 में मैं कर रहा हूँ
क्लैट के लिए सचिन को करेंगे, ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन, भी जानते हो ना आप, इसका भी क्लैट का दिया हुआ लेकिन उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाया था। मैं चाह रहा हूँ कि क्लैट की स्पेशल क्लास लगूंगा मैं, मेरा एक ड्रीम है, बहुत बार मैं कहता भी हूँ, और उसमें मेरी भी रुचि रहेगी, मैं खुद ही उसमें बिल्कुल भाग लूंगा। मुझे बहुत क्लैट मुझे IIT से अच्छी लगती है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में हमारी प्यारी बिटिया आई, कितनी शानदार दोनों भाषाओं में अपने विचारों को आपके सामने रख रही थी। मैं तो महसूस कर रहा था कि मैं बॉम्बे तो नहीं बैठा हूँ। ऐसे वैसे हमारे पास टैलेंट और कहाँ से निकली, आप में से एक है, आप भी ऐसे बन जाओगे, हम आपको और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए मैं स्पेशल करने जा रहा हूँ, आपको अप्रैल में ही चेंजमेंट देखने को मिलेगा। मैं लग रहा हूँ रात दिन आपके लिए लगा रहा, तो मेरा एक ही सपना है, एक ड्रीम है, एक ही मोटिव है कि मेरी बेटियां किसी के पीछे न रह जाए। थैंक यू, जय जवान। Thank you, Director sir. Now I would request to Principal Ma'am for the vote of thanks. Students, Mahika's grandfather is also with her, so we shall give honor to the grandfather also along with her. We hope you enjoyed the session a lot, students. Did you really enjoy this session or not? I am asking you. So reply with energy. What was the outcome of today's session? क्या सीखे जा रहे हो आप इससे? देखो, जो बातें महिका ने आपको सजेस्ट की, ये बातें तो आपको शायद और कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी, but the point, the key striking feature, did you observe the expression of this particular girl on the stage when she was delivering her speech? Did you observe her body language, her gestures, how perfect she was? That is the first learning element which you should observe. Now, I would request to grandfather of Mahika, Sri Ramchandra Beniwal. Congratulations, दादाजी, आपकी वास्तव में पोती ने आपका नाम रोशन किया और साथ में हमारी संस्था को भी गौरवान्वित किया। इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं और आज आप पधारे, ऐसे ही आप संस्था से जुड़े रहें और लगातार हमें आशीर्वाद देते रहें। दिल से धन्यवाद। डायरेक्टर सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भी दादाजी के सम्मान में उनको मेडल पहना के और कुछ शब्द कहें। देखो, पोती दादा का सम्मान करवा रही है। मुझे बाद में पता चला धन्य ऐसे दादाजी जिनकी ऐसी लाडली दुलारी पोतियां हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपके भी दादाजी का आप ऐसे मान सम्मान करें। मैं रामचंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपके नाम को चमकाएगी, ये आपके नाम को ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, आपके पास ऐसी पोती है जो एक बहुत बड़ा नगीना है, बहुत बड़ी निधि है। ये हम सब के लिए एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। रामचंद्र जी, थैंक यू। दादाजी का सम्मान मेडल पहनाकर applause student, applause, continue. That's really a proud moment for each and everyone.
respected director sir, chairman sir, all staff members and dear students. And special thanks to Milika. So give us such enlightenment for the cyber security, that is a major part of our youngers. So because of they all use the social media lots of. So I thanks to all the persons to giving this such type of task and such type of helpful guidance to us. And then now we conclusion the all the things. And now we will go all the classes, go in our classes one by one.